حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل عرب کا ماحول ظلم و ستم اور جہنم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دور کو جہانیت کا دور کہا جاتا ہے، جہاں خواتین کے وقار کا تحفظ نہیں کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور غلامی اور ظلم عام بات تھی۔ 360 بتوں کو خانہ خانہ کے اندر رکھا گیا، جو اصل میں اللہ کا گھر تھا۔ رحم، محبت اور انصاف دلوں سے نکل گئے۔ اس وقت مکہ میں یہودی اور عیسائی رہتے تھے، لیکن مشرکونوں کی تعداد اور اثر و رسوخ سب پر بہت زیادہ تھا۔ ایسی صورتحال میں قریش قبیلے کے سردار حضرت عبد المطلب، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ مکہ کا حکمران بن گیا۔ ان کی بہادری اور ہمت کے لیے پورے شہر میں ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ پھر 570 ایڈی کا وقت آیا جب دشمن کی فوج نے مکہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس وقت پیغمبر اسلام کے دادا حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ لوگ خوف زدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ ان میں دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ دشمن افواج نے بہت سے مکائک پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ان پر ظلم کیا اور مکہ کے تمام اونٹوں کو لے گئے، بشمول حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو، تاکہ کوئی بھی ان کے راستے میں کھڑا نہ ہو سکے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبد المطلب آئے اور کہا، ابوا، ہم ہاتھیوں کی اس فوج سے نہیں لڑ سکتے، ان کے سامنے ہتھیار رکھنا بہتر ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے ساتھ ہاتھیوں کی فوج کے سردار سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس فوج کا کمانڈر اب پڑوسی مکہ، یمن کا حکمران تھا۔ وہ بہت بہادر، طاقتور اور طاقتور تھا، تاہم اس وقت عرب سماج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن دنیا کے بیشتر لوگوں نے تسلیم کیا تھا کہ اسلام سب سے اونچا، سچے اور پرامن مذہب ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف علاقوں سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور کاروانوں کی شکل میں حج کے لیے مکہ آتے تھے۔ اسلام اور خانہ خانہ کی اس شہرت کو دیکھ کر ابراہیم نے یمنی ریاست سنا میں خانہ خانہ کی طرح ایک چرچ تعمیر کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ عیسائی مذہب کو اپنائیں اور اس کے بنائے ہوئے چرچ میں عبادت کرے۔ لیکن جب ابراہیم نے دیکھا کہ اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کتاب کو منہدم کر دے گا۔ پھر وہ 600 سپاہیوں اور 13 ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب اب کے پاس آئے اور کہا، میں اب کو خبردار کر رہا ہوں، جس گھر کو تم توڑنا چاہتے ہو وہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس خطرناک ارادے سے پرہیز کرے۔ لیکن ابراہیم نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عبد المطیب نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو، اور ابراہیم حیران ہوا اور کہنے لگا، میں تیرے مقدس کو تباہ کرنے آیا ہوں، جہاں آپ کے بزرگ پوجا کرتے رہے ہیں۔ اس سے آپ کو عزت اور پہچان ملے گی، لیکن تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ صرف اپنا اونٹ لینے آئے تھے۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں، اسی لیے میں انہیں یہاں لایا ہوں، لیکن اس مکہ اور خانہ خانہ کا اصل مالک اللہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ خود کسی نہ کسی طرح اس کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ پھر ابراہیم نے اونٹ واپس کر دیے اور وہ اپنے گھر لوٹ گئے۔ اگلی صبح ابراہیم نے ہاتھیوں کی اپنی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے کے لیے مارچ کیا، لیکن جیسے ہی ہاتھی کب کی حد تک پہنچے، وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں پتھر کے بنے ہوں۔ ابراہیم اور اس کے سپاہیوں نے چالاکی سے ہاتھیوں کو موڑنے پر مجبور کیا۔ وہ ہاتھیوں کو مختلف پکوان کھلاتے اور پھر کھانا کبا کے سامنے پھیلاتے تاکہ ہاتھی دوبارہ اس کی طرف بڑھیں۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب بہت پریشان اور بے چین تھے۔ میرا دل بھاری تھا اور میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ وہ کعبہ میں آیا۔ قلعہ کے دروازے پر ایک مضبوط زنجیر جڑی ہوئی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے زنجیر کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنا سر دروازے پر رکھ دیا۔ پھر اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، یہ گھر تیرا ہے اور اس کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تو ہی ہے۔ ہم صرف آپ کے خادم ہیں، ہماری بس میں کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اپنے گھر کی دیکھ بھال کرے۔ نماز پڑھتے ہوئے حضرت عبد المطلب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک اسے آسمان سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور جیسے ہی انہوں نے اوپر دیکھا، انہوں نے سینکڑوں ابیل پرندوں کو آسمان سے مکہ کی طرف اڑتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عبد المطیب ان پرندوں کو حیرت سے دیکھتے رہے اور دل میں سوچتے رہے کہ شاید اللہ کی طرف سے بھیجی گئی رحمت ہی ہے جو آج خانہ خانہ کو بچانے کے لیے آئی ہے۔ اتنسر لو اوات
हर अबाबील के पास 3 आचार कंकरियां थीं, एक उनकी चूंच में और 2 उनके पंखों में। काबा, यहाँ तक कि वो लड़ने लगे। काबा। फिर अचानक अबुआ के रेवड़ के तमाम परिंदे इब्रा की हाथियों की फौज और इसके सिपाहियों पर चढ़ आए। इब्रा के सिपाहियों ने जब उन परिंदों को देखा तो वो खौफजदा होकर भाग निकले, लेकिन इस वक्त तक तमाम इब्बीबिल उन पर उनकी चोंचों और पंखों के कंकरियां बरसाने लगे थे। ये आसमान से गिरती हुई बारिश की तरह है। ये देखा गया कि हर कंकर फौजियों के जिस्म को चीर रहा था। चंद ही दिनों में पूरी फौज तबाह हो गई। अब्राम ब वमर, अल्लाह ने इसके जिस्म को बंद कर दिया जिसके जिस्म पर रोशनी की चमकती हुई शुआएं चमक रही थीं। दर व हरान रआ, इसके बाद इसने नौज़ायदा बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बाहों में लिया और जब इसे भूख लगी तो इसे दूध पिलाया। ये औरत हज़रत हलीमा सदा बन गई, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध की माँ थी, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए इससे ज़्यादा अजर देने वाला कोई नहीं था, इसलिए अभी तक किसी ने उन्हें अपनाया नहीं था। इस सिलसिले में हज़रत अब्द अल-मुतय्यब ने हज़रत हलीमा और उनके शौहर से बात की। हज़रत हलीमा और उनके शौहर ये जानते हुए भी कि उन्हें ज़्यादा अजर नहीं मिलेगा, इसने इस बात पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। फिर हज़रत अमना ने अपने तमाम मसाइब के बावजूद अपने सुर्ख बाल हज़रत हलीमा के हवाले कर दिए। बदले में उन्हें 2 ऊँट और 1 गधा दिया गया। जब हज़रत हलीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने इलाके में पहुंचीं तो बारिश शुरू हो गई, जबकि कई सालों तक बारिश का नाम और निशान भी नहीं था। और जिस दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा अलैहि अस्सलाम के घर आए, अल्लाह की बरकतें उनके घर में आने लगे। 2 साल का अरसा गुजर गया। मुद्दत की मियाद ख़त्म होने के बाद हज़रत हलीमा और उनके शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बीवी हज़रत अमीना के पास वापस ले आए, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खैन बिदूश रोशन हुआ। दूसरी तरफ हज़रत अमना अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ीं, लेकिन इसके साथ ही कब के अर्द गिर्द एक वबा फैल गई थी। इसी दौरान हज़रत अब्द अल-मतलब को खबर मिली कि बनी इसराइल के यहूदी अभी भी पैगंबर की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी खतरे से बचने के लिए गहरी तशवीश का इजहार किया, और फिर हज़रत हलीमा अलैहि अस्सलाम ने सदा को बुलाया और अपने प्यारे पोते को इसके हवाले कर दिया और कहा, ए हलीमा, ये बच्चा अल्लाह का भरोसा है, इसे अपने साथ रखें और इसे हर वक्त महफूज रखें। चुनांचे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हलीमा सदा के घर गए और कुछ अरसा गुजर चुका था। उस सुदवरानी हदरत हलीमा बिमरअ, वहाँ के हकीमों और जादूगरों ने उनका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से जादूगरों को हटा दिया, और जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा का हाथ पकड़ा, वअन सह्हत मिन दुनुअन, ये देखकर जादूगर हैरान रह गए और फौरन वहाँ से चले गए। लेकिन वो जानता था कि वो एक ख़ास बच्चा है, इसलिए इसने ये खबर यहूदियों को दी। ये सुनकर दुश्मनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए हज़रत हलीमा के घर पर हमला करना शुरू कर दिया। हज़रत हलीमा अलैहि अस्सलाम और उनके शौहर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया, लेकिन वो खतरात को जानता था। इसी वजह से हज़रत हलीमा के शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के एक पहाड़ पर चले गए। लेकिन इस बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाना शुरू किया गया तो हज़रत हलीमा की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। जब हज़रत अब्द अल-मतलब को ये खबर मिली तो वो फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर तकरीबन 1 साल उनके साथ एक गार में गुजारे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ थे तो पूरा सहरा जिंदगी से भरा हुआ था। फिर एक दिन हज़रत अमना इस गार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने रिश्तेदारों से मिलने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पर जाने के लिए मदीना आए। दरहकीकत हज़रत अब्दुल्ला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 माह कबल तिजरत के सिलसिले में मदीना आए थे, जो व बिमर उर्मर, इसीलिए उन्हें मदीना में दफन किया गया। हज़रत अमीना यहाँ बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर वालों के बारे में बताते और उनके साथ कुछ वक्त गुजारते। लेकिन सिर्फ 2 माह बाद हज़रत अमीना अचानक बीमार पड़ गईं और इसी बीमारी में मदीना से वापसी के दौरान हज़रत अमीना का भी इंतकाल हो गया। इस तरह सिर्फ 6 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम
सुआद यतीम हो गए। लेकिन इसी वक्त जब यहूदियों ने पैगंबर पर हमला करने की कोशिश की तो पैगंबर इस्लाम के चचा हज़रत अबू तालिब ने उन्हें रोक दिया। हज़रत अबू तालिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का वापस आए और उन्हें अपने दादा हज़रत अब्द अलमतलब के हवाले कर दिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सौत है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दादा की खानों की देखभाल और हज के लिए आने वाले ज़ायरों की खिदमत में मदद करते थे। लन इदिन जब हदरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़ी खान इद्दन रत व आन बिमरवा। इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतकब्बिर चचा अबू लहब कुरैशी का सरदार बनना चाहते थे। लेकिन जल्द ही हज़रत अब्द अलमुतय्यब ने ये ज़िम्मेदारी हज़रत अबू तालिब के हवाले कर दी। कुछ दिन बाद हज़रत अब्द अलमतलब का इंतकाल हो गया। इस तरह सिर्फ 8 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ मक्का में रहना शुरू की। वहाँ नबी मुख्तलिफ काम करते थे, बशमूल बकरियां चुराना। इसी तरह वक्त गुजरता गया और अब 12 साल के हो गए। और प्यारे साथियों, क्योंकि अब के चचा हज़रत अबू तालिब एक ताजिर थे, अपने भी ताजरत का पेशा इख्तियार किया। इंशाअल्लाह हमारी अगली वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र और उनकी हैरत अंगेज़ कहानी बयान करेंगे। हमें यकीन है कि आप इस खुशगवार कहानी को सुनने के लिए बेताबी से इंतज़ार करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अमान अल्लाह हिमम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से क़ब्ल अरब का माहौल ज़ुल्म और सितम और जहन्नम में डूबा हुआ था। इस दौर को जहानियत का दौर कहा जाता है, जहाँ ख़वातीन के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था और ग़ुलामी और ज़ुल्म आम बात थी। 360 बुतों को खाना खाना के अंदर रखा गया, जो असल में अल्लाह का घर था। रहम, महब्बत और इंसाफ दिलों से निकल गए। इस वक्त मक्का में यहूदी और ईसाई रहते थे, लेकिन मशरिकोनों की तादाद और असर और रसूख सब पर बहुत ज़्यादा था। ऐसी सूरत हाल में कोरश कबीले के सरदार हज़रत अब्द अलमुतलीब, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, वो मक्का का हुक्मरान बन गया। उनकी बहादुरी और हिम्मत के लिए पूरे शहर में उनका एहतराम किया जाता था। फिर 570 एडी का वक्त आया जब दुश्मन की फ़ौज ने मक्का की तरफ पेश कदमी की। इस वक्त पैगंबर इस्लाम के दादा हज़रत अब्द अलमतलब मक्का के सरदार थे। लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। उनमें दुश्मन से लड़ने की ताकत नहीं थी। दुश्मन अफ़वाज ने बहुत से मक्काइक पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने उन पर जुल्म किया और मक्का के तमाम ऊँटों को ले गए, बशमूल हज़रत अब्द अलमतलब के 200 ऊँटों को, ताकि कोई भी उनके रास्ते में खड़ा न हो सके। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्द अलमतलब आए और कहा, अबुआ, हम हाथियों की इस फ़ौज से नहीं लड़ सकते, उनके सामने हथियार रखना बेहतर है। फिर हज़रत अब्द अलमतलब अपने बेटे के साथ हाथियों की फ़ौज के सरदार से मिलने के लिए रवाना हो गए। इस फ़ौज का कमांडर अब पड़ोसी मुल्क मक्का, यमन का हुक्मरान था। वो बहुत बहादुर, ताकतवर था। ताहम इस वक्त अरब समाज अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन दुनिया के बेशतर लोगों ने तस्लीम किया था कि इस्लाम सबसे ऊंचा, सच्चे और पुरअमन मज़हब है। इसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों से लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और कारवानों की शक्ल में हज के लिए मक्का आते थे। इस्लाम और खाना खाना की इस शोहरत को देखकर इब्राहीम ने यमनी रियासत सना में खाना खाना की तरह एक चर्च तामीर किया, क्योंकि वो चाहता था कि लोग ईसाई मज़हब को अपनाएं और इसके बनाए हुए चर्च में इबादत करें। लेकिन जब इब्राहीम ने देखा कि इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो वो बहुत गुस्से में आ गया और इसने फैसला किया कि वो किताब को मुनहदिम कर देगा। फिर वो 600 सिपाहियों और 13 हाथियों के साथ मक्का के लिए रवाना हुआ। इस वक्त हज़रत अब्द अलमतलब अब के पास आए और कहा, मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ, जिस घर को तुम तोड़ना चाहते हो वो अल्लाह का घर है, इसलिए इस खतरनाक इरादे से परहेज करे। लेकिन इब्राहीम ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। फिर हज़रत अब्द अलमुतय्यब ने कहा कि मुझे मेरे ऊँट वापस कर दो, और अब्राहम हैरान हुआ और कहने लगा, मैं तेरे मुक़द्दस को तबाह करने आया हूँ, जहाँ आपके बुज़ुर्ग पूजा करते रहे हैं। इससे आपको इज़्ज़त और पहचान मिलेगी, लेकिन तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपना ऊँट लेने आए थे।
इस पर हज़रत अब्द अलमतलब ने जवाब दिया कि ऊंट का मालिक मैं हूँ, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। लेकिन इस मक्का और खाना खाना का असल मालिक अल्लाह है, और मुझे यकीन है कि अल्लाह खुद किसी न किसी तरह इसके घर की हिफाजत करेगा। फिर इब्राहीम ने ऊंट वापस कर दिए और वो अपने घर लौट गए। अगली सुबह इब्राहीम ने हाथियों की अपनी फौज के साथ मक्का में दाखिल होने के लिए मार्च किया, लेकिन जैसे ही हाथी कब की हद तक पहुंचे, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लगा जैसे इसके पाँव पत्थर के बने हों। इब्राहीम और इसके सिपाहियों ने चालाकी से हाथियों को मोड़ने पर मजबूर किया। वो हाथियों को मुख्तलिफ पकवान खिलाते और फिर खाना कबा के सामने फैलाते ताकि हाथी दोबारा इसकी तरफ बढ़ीं। दूसरी तरफ हज़रत अब्द अलमतलब बहुत परेशान और बेचैन थे। मेरा दिल भारी था और मेरी आंखें सूज गई थीं। वो कबा में आया। कला के दरवाजे पर एक मजबूत जंजीर जड़ी हुई थी। हज़रत अब्द अलमतलब ने जंजीर को मजबूती से पकड़ा और अपना सर दरवाजे पर रख दिया। फिर इसने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, ये घर तेरा है और इसकी देखभाल का जिम्मेदार तो ही है। हम सिर्फ आपके खादिम हैं, हमारी बस में कुछ नहीं है। अब आप अपने घर की देखभाल करे। नमाज पढ़ते हुए हज़रत अब्द अलमतलब की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक इसे आसमान से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने सैकड़ों अबैल परिंदों को आसमान से मक्का की तरफ उड़ते हुए देखा। हज़रत अब्द अलमुतय्यब उन परिंदों को हैरत से देखते रहे और दिल में सोचते रहे कि शायद अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत ही है जो आज खाना खाना को बचाने के लिए आई है। अतनसरिलू एत। हर अबाबील के पास 3 आचार कंकरियाँ थीं, एक उनकी चूंच में और 2 उनके पंखों में। काबा, यहाँ तक कि वो लड़ने लगे। काबा। फिर अचानक अबुआ के रेवड़ के तमाम परिंदे इब्रा की हाथियों की फौज और इसके सिपाहियों पर चढ़ आए। इब्रा के सिपाहियों ने जब उन परिंदों को देखा तो वो खौफजदा होकर भाग निकले, लेकिन इस वक्त तक तमाम इब्बीबिल उन पर उनकी चोंचों और पंखों के कनकरियाँ बरसाने लगे थे। ये आसमान से गिरती हुई बारिश की तरह है। ये देखा गया कि हर कनकर फौजियों के जिस्म को चीर रहा था। चंद ही दिनों में पूरी फौज तबाह हो गई। अब्राम ब वमर। अल्लाह ने इसके जिस्म को बंद कर दिया, जिसके जिस्म पर रोशनी की चमकती हुई शुआएं चमक रही थीं। दर व हरान रआ। इसके बाद इसने नौज़ाइदा बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बाहों में लिया और जब इसे भूख लगी तो इसे दूध पिलाया। ये औरत हज़रत हलीमा सदा बन गई, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध की माँ थी, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए इससे ज़्यादा अजर देने वाला कोई नहीं था, इसलिए अभी तक किसी ने उन्हें अपनाया नहीं था। इस सिलसिले में हज़रत अब्द अलमुतय्यब ने हज़रत हलीमा और उनके शौहर से बात की। हज़रत हलीमा और उनके शौहर ये जानते हुए भी कि उन्हें ज़्यादा अजर नहीं मिलेगा, इसने इस बात पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। फिर हज़रत अमना ने अपने तमाम मसाइब के बावजूद अपने सुर्ख बाल हज़रत हलीमा के हवाले कर दिए। बदले में उन्हें 2 ऊंट और 1 गधा दिया गया। जब हज़रत हलीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने इलाके में पहुंचीं तो बारिश शुरू हो गई, जबकि कई सालों तक बारिश का नाम और निशान भी नहीं था। और जिस दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा अलैहि अस्सलाम के घर आए, अल्लाह की बरकतें उनके घर में आने लगे। 2 साल का अरसा गुजर गया। मुद्दत की मियाद ख़त्म होने के बाद हज़रत हलीमा और उनके शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बीवी हज़रत अमीना के पास वापस ले आए, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खैन बिदूश रोशन हुआ। दूसरी तरफ हज़रत अमना अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ीं, लेकिन इसके साथ ही कब के अर्द गिर्द एक वबा फैल गई थी। इसी दौरान हज़रत अब्द अलमतलब को खबर मिली कि बनी इसराइल के यहूदी अभी भी पैगंबर की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी खतरे से बचने के लिए गहरी तशवीश का इजहार किया, और फिर हज़रत हलीमा अलैहि अस्सलाम ने सदा को बुलाया और अपने प्यारे पोते को इसके हवाले कर दिया और कहा, ए हलीमा, ये बच्चा अल्लाह का भरोसा है, इसे अपने साथ रखें और इसे हर वक्त महफूज रखें। चुनांचे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हलीमा सदा के घर गए और कुछ अरसा गुजर चुका था। उस दौरान हदरत हलीमा बिमरअ। वहाँ के हकीमों और जादूगरों ने उनका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से जादूगरों को हटा दिया
اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کا ہاتھ پکڑا وَأَنُ صَحَّتْ مِن دُنُوءٍ یہ دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے اور فوراً وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ایک خاص بچہ ہے، اس لیے اس نے یہ خبر یہودیوں کو دی۔ یہ سن کر دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے حضرت حلیمہ کے گھر پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حلیمہ علیہ السلام اور ان کے شوہر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، لیکن وہ خطرات کو جانتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت حلیمہ کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک پہاڑ پر چلے گئے، لیکن اس بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا شروع کیا گیا تو حضرت حلیمہ کی آنکھوں کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ خبر ملی تو وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پھر تقریباً 1 سال ان کے ساتھ ایک غار میں گزارے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے تو پورا صحرا زندگی سے بھرا ہوا تھا۔ پھر ایک دن حضرت امنہ اس غار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ کی قبر پر جانے کے لیے مدینہ آئے۔ درحقیقت حضرت عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ قبل تجارت کے سلسلے میں مدینہ آئے تھے، جو وبمر ورمر، اسی لیے انہیں مدینہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت امینہ یہاں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر والوں کے بارے میں بتاتے اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتے، لیکن صرف 2 ماہ بعد حضرت امینہ اچانک بیمار پڑ گئیں اور اسی بیماری میں مدینہ سے واپسی کے دوران حضرت امینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح صرف 6 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام سواد یتیم ہو گئے۔ لیکن اسی وقت جب یہودیوں نے پیغمبر پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے انہیں روک دیا۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ واپس آئے اور انہیں اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادا کی خانوں کی دیکھ بھال اور حج کے لیے آنے والے زائروں کی خدمت میں مدد کرتے تھے۔ لن ادن جب حضرت عبد المطلب توافی خان ادن رت وآن بمروہ، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متکبر چچا ابو لہب قریشی کا سردار بننا چاہتے تھے، لیکن جلد ہی حضرت عبد المطیب نے یہ ذمہ داری حضرت ابو طالب کے حوالے کر دی۔ کچھ دن بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح صرف 8 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ مکہ میں رہنا شروع کی۔ وہاں نبی مختلف کام کرتے تھے، بشمول بکریاں چرانا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اب 12 سال کے ہو گئے۔ اور پیارے ساتھیوں، کیونکہ اب کے چچا حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے، اپنے بھی تاجرت کا پیشہ اختیار کیا۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور ان کی حیرت انگیز کہانی بیان کریں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس خوشگوار کہانی کو سننے کے لیے بے تابی سے انتظار کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ امان اللہ ہمم۔